Hello everyone, welcome back to our YouTube learning family. I am really happy to see you again in today's session. In the previous class, we learned the basic concepts of age problems, and today we are going to take it one step further with some amazing exam oriented questions. Age problems are very important for all competitive exams, even school exams. If you understand the logic once, you will be able to solve any question in just a few seconds. So stay connected till the end of the class because today I will share short tricks, smart methods and previous year patterns that will make your preparation even stronger. If you are new to the channel, don't forget to like, share and subscribe my channel for more helpful classes. Let's start the session and become a master of these problems. So, our first question is 10 years ago, P was half of Q's age. If the ratio of their present ages is 3 ratio 4, what will be the total of their present ages? क्वेश्चंस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ सके। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है 10 years ago पी एंड क्यूज एज। पी का एज क्यू के एज का क्या है, हाफ है। तो पी और क्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू इक्वल टू 1/2। इसका मतलब पी रेशियो क्यू आ गया 1/2। अब इसका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 3/4। तो प्रेजेंट एज का रेशियो है 3/4 और 10 years एगो, एगो जहाँ पे है हमें क्या लेना है, माइनस लेना है। तो -10 -10 और ये हो गया 1/2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे रेशियोज का। तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4। तो 6x माइनस 4x इक्वल टू 10 2 जा 20, 10 1 जा 10। तो 20 माइनस 10 करेंगे तो ये आ गया आपका 10। 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गया 5। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो प्रेजेंट एज का टोटल क्या हो जाएगा, 3x + 4x इक्वल टू 7x। तो 7 × 5 ये हो गया 35। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। Rahim and his daughter is ratio will be 5/1 and Savita, okay, his daughter name is Savita. 7 years from now Rahim will be 3 times as old as Savita.
plus 7 years from now, Rahim will be 3 times as well as Savita. What is the present age of Rahim? Again, we will cross multiplication of this two ratio. 5 1 ja 5 and 3 1 ja 3. 5x minus 3x equal to 7 1 ja 7, 3 7 ja 21 minus 7. 14 to x. X will be 14 by 2. X equal to 7. What is the present age of Rahim? तो रहीम का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 5x इक्वल टू 5 इंटू 7, दैट इज 35 ईयर्स. ये रहीम का प्रेजेंट एज हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, क्योंकि इस मेथड से हमने पहले भी क्वेश्चंस को किया हुआ है. आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इस मेथड को अच्छे से समझाया है. तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ is husband and wife 7:5. After 10 years, the ratio of their ages will be 9:7. After 10 years, the ratio will be 9:7. A child was born after 2 years of their marriage. Find the age of the child if the ratio of ages of the husband and wife at the time of marriage was 5:3. मैरिज के टाइम हस्बैंड एंड वाइफ का रेशियो कितना है? 5:3. तो पहले हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे. 7 7 जा 49 और 5 9 जा 45. तो 49x माइनस 45x इक्वल टू 10 7 जा 70 और 10 9 जा 90. तो ये आ गया आपका 20. 90 माइनस 70 इक्वल टू 20. 4x equal to 20. X will be 20 by 4 equal to 5. अब हमें यहाँ पे निकालना है मैरिज के टाइम इनका एज. तो हस्बैंड का एज कितना है? 5 5 जा 25. वाइफ एज 5 3 जा 50. तो हमें फाइंड आउट करना है. अ चाइल्ड वॉज बोर्न आफ्टर 2 years ऑफ देयर मैरिज. तो 2 years ऑफ मैरिज इट मीन्स फाइंड द एज ऑफ द चाइल्ड इफ द रेशियो ऑफ एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है?
the age of the child. After 2 years, after 2 years, the husband age will be 25 plus 2 equal to 27, and wife age will be 15 plus 2 equal to 17, and their present age is present age and their present ages are 7:5. 7:5। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और वाइफ का 25। तो इसमें 27 से 35 कितना डिफरेंस आ रहा है? 35 माइनस 27, तो ये आ रहा है 8 ईयर का। ठीक है, अब यहीं 25 में 17 माइनस करेंगे तब भी हमारा 8 ईयर ही गैप आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बेटे का एज 8 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 24 ईयर। हस्बैंड एंड वाइफ एवरेज एज कितना है? 24 ईयर। इट मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ का एज हो जाएगा 48। द एज ऑफ देयर सन इज 1/9 ऑफ द एज ऑफ द हस्बैंड। तो सन का एज क्या हो जाएगा? हस्बैंड के एज का 1/9। द वाइफ इज 6 ईयर यंगर देन द हस्बैंड। वाइफ क्या है? 6 ईयर यंगर है। ठीक है, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 मेंबर ऑफ द फैमिली। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं वाइफ कितना है? हस्बैंड से 6 ईयर यंगर, तो हस्बैंड प्लस वाइफ का क्या हो जाएगा? हस्बैंड से 6 ईयर यंगर है इक्वल टू 48। तो 2h इक्वल टू 54 माइनस 6 इधर जाके प्लस हो जाएगा। h हस्बैंड इक्वल टू 54/2 इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। तो हस्बैंड है 27 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 3। तो उसका सन का एज कितना हो जाएगा? 3 ईयर ओल्ड। ठीक है, अब हमें निकालना है द फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल 3 मेंबर्स। तो एवरेज एज क्या हो जाएगा? हस्बैंड का था 27 प्लस सन का है 3 ईयर ओल्ड प्लस वाइफ का हो जाएगा
27 माइनस 6, तो ये हो गया आपका 21। तो ये आ जाएगा आपका 30 प्लस 21 इक्वल टू 51। अब इसका एवरेज निकालना है, तो ये आ जाएगा 17। तो तीनों के एज का एवरेज आ जाएगा 17 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। Question number 5. The ratio of the present ages of a man and his wife is 5:8. Present age of man and his wife. Man and his wife 5:8. After 10 years, the ratio of the man and his wife will be 2:3. What will be the ratio of their ages after 20 years? So let's solve this problem. 5 3s are 15 and 2 8s are 16. So 16x minus 15x equal to 3 10s are 30 और 2 10s are 20. तो 30 minus 20 equal to 10. तो x will be 10. Now we find the present age of man and his wife is the main present age is 5x, that is 5 into 10 equal to 50, and wife is 8x equal to 8 into 10, ये आ गया आपका 80. आफ्टर 20 ईयर इनका एज क्या हो जाएगा? 50 प्लस 20 इक्वल टू 70. 80 प्लस 20 इक्वल टू 100. ये है मैन का और ये उसके वाइफ का एज हो जाएगा. ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं. 7 years ago, Prachi was 4 times as old as her daughter was at the time. 4 years from now, Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would then be. Find the sum of the present ages of Prachi and her daughter. So 7 years ago, 4 times as old as her daughter. तो प्राची एंड हर डॉटर का एज हम लोग ले लेते हैं. प्रेजेंट एज है 4 years 7 years ago. 4 years from now.
अच्छा, पास्ट एंड फ्यूचर दिया है और प्रेजेंट एज नहीं दिया है। तो 7 ईयर एगो इनके एज का रेशियो कितना है? 4:1। आफ्टर 4 ईयर प्लस 4, इनका एज क्या हो जाएगा? 2.5 टाइम Prachi's age is 2.5 times as old as her daughter. To end 2.5 टाइम, तो ये आ गया आपका 5/2। तो प्राची एंड डॉटर का रेशियो आ गया 5/2। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनका प्रेजेंट एज से बिफोर 7 ईयर रेशियो है 4:1 एंड प्रेजेंट एज से आफ्टर 4 ईयर इनका जो रेशियो है वो है 5:2। तो जो एज डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा। तो 7 ईयर माइनस आफ्टर 4 ईयर कितना हो गया टोटल डिफरेंस? 7 + 4 11 ईयर। और इनका जो एज डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? सेम आ रहा है 5 - 4 और 2 - 1। तो x हमारा आ गया 11। 7 + 4 11। अब हमें पूछा क्या है? इनका प्रेजेंट एज का सम। तो ये आ जाएगा 5 + 2 7x = 11 7 जा 77। अब ये तो है आपका कौन सा एज? आफ्टर 4 ईयर। तो जब हम लोग प्रेजेंट एज में जाएंगे तो 4 + 4 8 ईयर, इसमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा 69 ईयर्स। ये है आपका प्राची और उसके डॉटर के एज का सम 69 ईयर्स। ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें प्रेजेंट एज नहीं दिया है और उसके पास्ट और फ्यूचर एज दिया है तो हम लोग उस पास्ट और फ्यूचर एज का टोटल एज डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आ जा रहा है आपका 7 + 4। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक नंबर स्केल लेते हैं। ये है हमारा प्रेजेंट एज, ये है हमारा पास्ट एज। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका फ्यूचर एज। अब यहाँ -7 से हमें जाना है फ्यूचर तक। तो ये टोटल कितना हो गया? 4 - -7 = 4 + 7 11 ईयर। 11 ईयर्स का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक है। तो यही हमारा बेस बन जाएगा और इसी से हम लोग क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा एज डिफरेंस कितना आ गया? 11 ईयर। तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमें पूछा है क्या? प्रेजेंट एज का सम।
हमारे पास प्रेजेंट एज है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो पास्ट वाला रेशियो का सम निकाल लेंगे या फ्यूचर वाले रेशियो का सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वाले रेशियो में अगर हम लोग सम करते हैं तो ये आ गया आपका 77। अब हमें जाना है बैक, मतलब कहाँ जाना है, 4 ईयर बैक। तो 4 ईयर प्राची का एज में माइनस करना है और 4 ईयर उसके डॉटर का एज में, तो टोटल 8 ईयर हमें फाइनल आंसर में माइनस कर देना है ताकि हमें प्रेजेंट एज मिल सके। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण वॉज born 3 years after his parents' marriage. His father is 6 years older than his mother. Father is 6 years older than his mother, but 26 years older than Karan. करण से कितने बड़े हैं वो, 26 ईयर बड़े हैं। हु इज 12 ईयर ऑफ एज एज ऑफ टुडे। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। करण के एज कितना है, 12 ईयर। एट व्हाट एज डिड हिज मदर इज गेट मैरिड। तो ये मैरिड के टाइम पे उनका एज है, और करण जो है वो उनके मैरिज के 3 साल बाद पैदा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके पजल को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि करण कितने एज का है, 12 ईयर का है। ठीक है, तो उसके फादर कितने हो जाएंगे, 12 + 26 = 38, और उनकी मदर कितने की हो जाएगी, 38 में 6 माइनस कर देंगे हम लोग, तो 32। ठीक है, अब उनके करण के बर्थ के टाइम पे उनका जो एज है वो क्या हो जाएगा, 3 साल बाद। अभी करण कितना, 12 ईयर ओल्ड है। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3 साल माइनस करेंगे। पहले तो करण का बर्थ निकाल लेते हैं, बर्थ के टाइम फादर और मदर का एज। तो फादर का एज हो जाएगा 8 बर्थ टाइम ऑफ Karan. The father age was 38 minus 12, and mother age was 32 minus 12, that is 26, and that is 20 years. ठीक है, ये हो गया। अब करण का जन्म हुआ था उनके मैरिज के 3 साल बाद, है ना। तो उसकी मदर का जो एज है वो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 3 = 17। ठीक है, सारे कंडीशन को प्रॉपर फॉलो करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रॉपरली बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, मदर इज एट मैरिड टाइम। ठीक है, तो ये हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 4 years ago, the ratio of the age of Ram and Rahul was 3:4. The ratio of their present age is 17:22. Ram and Rahul प्रेजेंट एज है 17:22। 4 years ago उनका एज कितना था? 3:4। What is the present age of Sunil if Ram is 5 years older than Sunil? ठीक है, ये है राम का एज। हमें क्या दिया है? राम और राहुल का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है और उसका पास्ट एज का रेशियो दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 17 4 जा 22 3 जा, तो ये आ जाएगा 68x माइनस 22 3 जा 66x इक्वल टू 4 4 जा 16 3 4 जा 12। तो 16 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। 2x इक्वल टू 4। ठीक है, x आ गया यहाँ से हमारा 2। अब हम लोग यहाँ पे इसका प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट एज है राहुल का सुनील एंड राम का रिलेशन दिया है, तो राम का प्रेजेंट एज निकालेंगे तो ये है 17। तो ये आ जाएगा आपका 17 इंटू 2 34। ठीक है, राम का एज कितना है? 34। तो सुनील का एज कितना हो जाएगा? 34 माइनस 12 इक्वल टू 2 और ये आ जाएगा 2। यहाँ सुनील इज 5 years यंगर देन राम, तो यहाँ पे हम लोग 12 नहीं, ये हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको निकालेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सुनील। तो प्रेजेंट एज ऑफ सुनील क्या हो जाएगा? राम की एज कितना है? 17 2 जा 34। 34 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 29। तो सुनील का एज हो जाएगा 29 years ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 20-year-old Manish is 5 times as old as his brother Chris. सपोज ग्रीस जो है वो x ईयर ओल्ड है, तो मनीष जो होगा वो क्या है? 5 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मनीष का एज कितना है? 20 year ओल्ड। मनीष का एज कितना है? 20 year ओल्ड। तो x इक्वल टू आ जाएगा 20/5 इक्वल टू 4।
मतलब ग्रीस का एज क्या हो जाएगा, 4 ईयर ओल्ड। हाउ ओल्ड विल मनीष बी व्हेन ही इज 3 टाइम एज ओल्ड एज ग्रीस। तो यहाँ पे ग्रीस हमारा 4 ईयर ओल्ड है, तो मनीष का एज हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछा है। यहाँ पे हमें निकालना है कि हाउ ओल्ड विल मनीष बी व्हेन ही इज 3 टाइम एज ओल्ड एज ग्रीस। मतलब यहाँ पे टाइम पूछा है कि कितने टाइम के बाद मनीष का एज उसके भाई ग्रीस के एज का 3 टाइम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा, मनीष का एज है 20 ईयर। कितने साल बाद मनीष का एज उसके भाई के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन बन जाएगा जिसमें हम लोग ग्रीस और मनीष, जब हम लोग यहाँ पे टाइम निकाल रहे तो टाइम जितना मनीष के लिए ऐड होगा उतना ही टाइम ग्रीस के लिए भी ऐड होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं y ले लेती हूँ, कितने टाइम हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो गया 20 प्लस y इक्वल टू 12 प्लस 3y। इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 12 इक्वल टू 3y माइनस y। यहाँ से आ गया 8 इक्वल टू 2y। y इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, y कितना आ गया हमारा, y इक्वल टू 4। इसका मतलब 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर द मनीष विल बी 3 टाइम एज वेल एज ग्रीस। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। एज ओल्ड एज ग्रीस, तो यहाँ आ गया 4। इसका मतलब है 4 ईयर लेटर मनीष एज विल बी आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 years मनीष एंड ग्रीस एज will be 20 plus 4 and 4 plus 4। तो ये हो गया 24 and 8। ठीक है, तो मनीष का एज क्या हो जाएगा, 24 ईयर्स हो जाएगा आफ्टर 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Amita's father was 38 years old when she was born, while her mother was 36 years old when her brother was born, who was 4 years younger than her. What is the difference between the ages of his parents? So let's solve this problem. Amita's father was 38 years old. फादर का एज कितना है, 38 ईयर। When she was born, इसका मतलब जब फादर का एज 38 ईयर्स था तब अमिता 0 ईयर्स की थी। While her mother was 36 year old, अब उस टाइम पे उसकी मदर जो है, जब उसकी मम्मी का
एज 36 ओल्ड था, तो उसके भाई जो है वो 4 years यंगर देन हर। उसकी मदर का एज है 36 years, तब उसका भाई जो है, उसका ब्रदर क्या है, 4 year यंगर है, किससे, अमिता से। ठीक है, तो उसका ब्रदर का एज क्या हो जाएगा, अमिता 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 का जो एज होगा उससे 4 year यंगर हो जाएगा। ये रिलेशन हमें दिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हिज पेरेंट। तो इसके फादर और मदर के एज का डिफरेंस हमें निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अमिता और उसके भाई का एज डिफरेंस है 4। ठीक है, तो यहाँ पे जब अमिता पैदा हुई तब उसकी मम्मी का एज क्या हुआ होगा, उसकी मम्मी का एज हुआ होगा 32 years old। एज डिफरेंस of her parents is 38 minus 32। इनका प्रेजेंट एज क्या है, उसके फादर का 38 है और उसकी मदर का 32 years है, तो इनका डिफरेंस आ गया 6 years। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। इस प्रॉब्लम से हम लोग अब तक 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और 10 क्वेश्चंस करेंगे और हम लोग सीखेंगे कुछ नए प्रॉब्लम को। अब तक हमने इस प्रॉब्लम के टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आगे हम लोग, मैंने आपको इस प्रॉब्लम से टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए कहा था। अब आगे के जो 10 क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बाकी जितने भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस करते रहिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व इवन मोर ट्रिकी क्वेश्चंस विथ न्यू कॉन्सेप्ट। So stay connected and keep learning with me. See you in the next class. Till then, keep practicing and stay confident. Thank you for watching.